Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th, the revision section. That is what we are going to looking today. Up to now we have completed poem number 1 to 9 and perhaps this is the poem number 10. In this poem today we are going to talk about what Jordan Nash, an American writer or American poet, wants to tell us in this poem. The time of the poet Jordan Nash, 1902 till 1971, was an American poet and was a famous poet with his light verses. आसान तरीके से शांत शब्दों में कुछ कहने में फेमस है ये हमारा पोएट. He was known as the producer of humorous poetry as well. Right? Now let's talk about the introduction of this poem. That is what we are going to look about. In this poem, the poet has written about a little girl, Belinda, who owns many pets. ये जो पोएम है हमारी, उसमें बेलिंडा नाम की एक लड़की है जिसके पास बहुत सारे पैट्स हैं. नेमली a black kitten named Ink, gray mouse named Blink, yellow dog named Mustard, and a crow dragon named Custard. The poet has described every character to be a brave except the dragon, who is a coward. Coward का मतलब यहाँ पे होता है डरपोक. But the whole situation changed when a pirate attacked Belinda's house. जब कुछ लुटेरों ने बेलिंडा के घर पे अटैक किया, तब उन लोगों को ड्रैगन की पावर के बारे में समझ में आया. No one else had the guts to face him. जो पायरेट आया था, उस पायरेट के सामना करने में दूसरे किसी जो उसके घर के मेंबर्स या ये जो बाकी के पेट्स हैं, उनकी इतनी पावर नहीं थी कि वो इस पायरेट का सामना कर सके. इट वॉज द ड्रैगन दैट किल्ड द पायरेट. और ड्रैगन ने ही उसका सामना किया और उसको मार डाला. All the characters are happy because they are saved by the dragon, but quickly change their thoughts and describe themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all them. इस पोएम के अंदर एग्जैक्टली हमें क्या बताया गया है वो हम जरा देख लेते हैं स्टांजा वाइज. In very first stanza, the poet talks about that once there was a little girl named Belinda. She lived in a little wise house. बहुत छोटे से white कलर के हाउस के अंदर वो रहती. She lived with some creatures, छोटे छोटे एनिमल्स आप बोल सकते हो, were her pets. वो सारे उसके पैट थे. They were a black kitten, वहां पे एक छोटी सी ब्लैक बिल्ली का बच्चा था. A grey mouse, माउस था. एक डॉग था. And a red wagon, or we can say dragon, right? Creature that the poet says was a really and truly a dragon. Wagon को यहाँ पे dragon बताया गया. इस पहले स्टांजा के अंदर डियर स्टूडेंट what were the literary devices used? सबसे पहले repetition, use of the word little again and again is used in this stanza, so you can understand it is a repetition as well. Then oxymoron. Oxymoron क्या होता है? use of two words with opposite meaning. जैसे pet dragon. अब आप समझो यहाँ पे pet dragon का मतलब क्या होता है. यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो ये वाला pet dragon. अब dragon जो होता है वो कभी pet नहीं बन सकता.
इट इज अ वाइल्ड मोस्ट वेशियस एनिमल, राइट। लेकिन यहाँ पे उसको पैट बताएगा। पैट एनिमल किसको रखते हैं? जो डोमेस्टिक होते हैं उनको हम पैट एनिमल बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब फिर से मैं डियर स्टूडेंट बता दे रहा हूँ आपको, क्या होता है? जब दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ लाया जाए, तब दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ लाया जाए तब बनता है ऑक्सीमोरन। उसके बाद एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स एंड अ लिटल, दूसरी लाइन में एंड अ रिलायो, बोथ, राइट। तो these are the poetic devices being used in it. What the second stanza exactly want to tell us? In the second stanza, the poet explained the name of all the animals that are tamed by Belinda. Belinda के द्वारा उनके जो नाम में बदलाव किया गया था वो यहाँ पे बताया गया। He says that the name of black kitten is Ink. जो बिल्ली का छोटा सा बच्चा था ब्लैक कलर का, उसको नाम दिया गया इंक। माउस को ब्लिंक नाम दिया गया था, ब्लिंक, BLINK। और येलो डॉग को जो येलो कलर होता है मस्टर्ड का, उससे बताया गया है। ड्रैगन that was a coward means was a weakling was called custard. यहाँ पे ड्रैगन जो था उसको कावर्ड वो नेचर में दिख रहा था, उससे उन्होंने नाम दिया कस्टर्ड, राइट। डियर स्टूडेंट, इस स्टांजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है वो है एक तो सिमिली, एज यू कैन सी, राइट, and the little yellow dog was sharp as. This word as word shows, it shows, yes, क्या है बताता है ये वर्ड? यस, सिमिली, लाइक, एज, ऐसे जब भी वर्ड आते हैं वो सिमिली होता है। नाउ एलिटरेशन, एलिटरेशन ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है। सी, देखो, कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, तो यहाँ पे पहले वर्ड में सी आता है, फिर कॉल्ड का सी आता है, कस्टर्ड का सी आता है, तो ये रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है, तो ये एलिटरेशन होगा। अनाफोरा, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू के दो जो रिपीटेड होते हैं वर्ड्स इन फर्स्ट टू लाइन्स, कंसेक्यूटिव लाइन्स वी कैन से, तो उसमें एंड द लिटिल ग्रे एंड द लिटिल येलो, तो इसमें एंड वर्ड यूज होता है, लिटिल वर्ड यूज होता है, दोनों कंसेक्यूटिव लाइन्स में यूज होता है, दैट इज एनाफोरा। रिपीटेशन, यूज ऑफ द वर्ड लिटिल, पूरे के पूरे स्टांजा में बहुत बार आपने लिटिल वर्ड को देखा होगा, तो ये हमारा रिपीटेशन होगा। In the third stanza, what the poet actually want to tell us? The poet want to tell us that the dragon, that it had a big sharp teeth and spikes on top. This means that its skin was pointed on the top. यहाँ पे जो स्पाइक टीथ की बात की गई है, शार्प टीथ की बात की गई है, और उसके शरीर पे पॉइंट्स है, नुकीली चीजें वहां पे बताई गई, वो स्किन का एक हिस्सा है वास्तव में, जो उसकी शरीर पे लगा है। ऑन द लोअर पार्ट इट हैड अ स्कैल व्हिच वर बोनी प्लेट्स, बोनी प्लेट्स होती है ना छोटी यूं यूं करके। अब प्रोटेक्टेड, टू प्रोटेक्ट द स्किन एज वेल। हिज माउथ हैज बीन कंपेयर्ड टू द फायरप्लेस, और उसकी जो माउथ है ड्रैगन का, उसको फायरप्लेस बोला गया। क्यों? क्योंकि उसमें से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आग निकलती रहती है। इवन हिज नोज इज कंपेयर्ड टू द चिमनी, बिकॉज उसमें से गैस, धुआं इस तरह से निकलता है, स्मोक निकलती है। हिज फीट आर लाइक अ शार्प नाइफ, उसके पंजे जो होते हैं पांव में, वो बहुत चाकू की धार की तरह तेज होते हैं, राइट, रेगर होते हैं, तो इसलिए उसको शार्प नाइफ की तौर पे बोला गया है।
आई होप डियर स्टूडेंट ये 3 स्टैंजा जो मैंने आपको इंक्लूडिंग फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द समरी ऑफ द स्टैंजा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. स्टे होम, स्टे सेफ, take care of your family and keep preparing for your board examination. Thank you very much.